Shall we start, everyone? Yes, sir. Okay. Yeah. Hello, everyone. Now, most of the commerce students plan to become a CA or CS, but not more than 1% achieve this dream. The reason is lack of knowledge and guidance. So, at Knowledge Inclusion, we thought to cut the hurdle between you and your career to be a successful CA or CS. For the same purpose, we invite CA Ashish Patil, who will guide us about the career prospects of being a CA or CS. To his credit, he is a professional person. He is holding the degree of CA, has guided more than 1,000 students in shaping their career, and also into teaching of CA and CS program. So we welcome you, sir. Over to you, sir. Thank you so much, sir. Good morning, all the dear students. Welcome to this session on a beautiful Sunday morning. I hope आप लोग सब बहुत अच्छे से हो घर पे. All are safe and all are healthy. So, बच्चा लोग जैसे अभी सर ने जस्ट बोला कि there are a lot of students in अपना commerce field who want to become a CA or a CS. So what we are here to do today is बेटा हम लोग है ना आज एक करियर गाइडेंस लेने वाले हैं with regards to CA and CS. So I'm more specifically going to talk about CA and CS. Now this in the time that we are today becomes all the more important. क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ बेटा? It becomes all the more important क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो शायद 12th के होंगे जिनकी एग्जाम पोस्टपोन हो चुकी है. दे आर कंफ्यूज्ड, दे आर क्लूलेस कि अब एग्जाम आगे कब होगी, हमें आगे क्या करना चाहिए. सो दिस शुड हेल्प, दिस शुड गाइड देम कि एटलीस्ट आगे उनके पास क्या क्या ऑप्शंस है. आपको जो भी डिसीजन लेना है ऑब्वियसली वो आप अपने पेरेंट्स के साथ, अपने ब्रदर सिस्टर के साथ, जिन या फिर जिनको भी आप सोचते हो कि वो आपको गाइड कर सके उनके साथ ही मिलके लेना है. बट you should know what the options are, वो आप क्या क्या आगे कर सकते हो. For this बेटा let us start ahead with अपना सेशन. ठीक है. सो बेटा अभी आज हम लोग मोस्टली मैं आपको CMA का भी इंफॉर्मेशन दूंगा. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट अबाउट CA, CS एंड CMA. ठीक है. सो कैन वी स्टार्ट बच्चा? अच्छा, अगर आपको बेटा एट द एंड ऑफ द सेशन कुछ भी क्वेरीज आता है तो प्लीज यूज द चैट बॉक्स एंड आप लोग वो चैट बॉक्स में आपका जो भी क्वेरीज है वो प्लीज पुट अप कर दीजिए. ठीक है. सो दैट शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम एंड आई विल एड्रेस द क्वेरीज एट द एंड ऑफ द सेशन. आपको जैसे जैसे क्वेरीज आता है आप चैट बॉक्स में डाल दो. सेशन खत्म होने के बाद मैं एक साथ देख के सबके क्वेरीज को क्या बेटा सॉल्व करूंगा. ठीक है. सो कम ऑन, लेट अस गो अहेड फॉर टुडे सेशन ऑफ CA, CS एंड CMA. अब बेटा सबसे पहले अपने को ये समझना पड़ेगा कि ये CA या CS या CMA के कोर्सेस का इंस्टीट्यूट्स के साथ रजिस्ट्रेशन वगैरह कैसे किया जाए. ठीक है. सो लेट मी टेक दिस फर्स्ट विथ रिगार्ड्स टू बेटा आपका CA का कोर्स. तो इफ यू सी हियर अपने CA के कोर्स में बेटा 3 लेवल्स है. The first level is what we call as CA Foundation. Then you have CA Inter, and then you have CA Final. ठीक है. What I am going to talk today is mostly about CA Foundation, क्योंकि मेरे 12th के बच्चों के लिए वही सबसे पहला सीढ़ी है आगे बढ़ने का. With CA Inter and CA Final आप जब जब पहुंचोगे तब तब हम उसके बारे में बात करेंगे. अगर कोई बच्चा is already in CA Inter or they want some guidance with regards to CA Final, as I said, they can put their queries in the comment box and then we will address them. ठीक है. So सबसे पहले let's go ahead and understand कि क्या सर मुझे ये जो CA या CS या CMA का डिग्री है किसी कॉलेज से करना पड़ेगा जैसे मैं मेरा ग्रेजुएशन करता हूं. ठीक है. सो बच्चे लोग यहाँ पे ऐसा टिपिकली कोई कॉलेज नहीं होता. आपको
बेटा एक इंस्टीट्यूट होता है जिसके थ्रू ये डिग्री करना पड़ता है, and that institute for the chartered accountants is called as the Institute of Chartered Accountants of India, which is also called as ICAI. ठीक है, I have just provided you the website of ICAI, wherein you can find all the other details with regards to all the other courses. So it is named as www.ICAI Institute of Chartered Accountants of India.org. तो ये वेबसाइट पे जाके आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी. ठीक है, चलो गोइंग अहेड बेटा, आपके जो सीए फाउंडेशन के एग्जाम्स है, these are conducted twice in a year. These are conducted what बेटा, twice in a year. ठीक है, कभी कंडक्ट होंगे तो कोई भी साल के या तो मई मंथ में या जून मंथ में कंडक्ट होंगे, या तो नवंबर और दिसंबर में कंडक्ट होंगे. ठीक है, अभी बेटा ऑब्वियसली इस साल का हम लोग अभी मई में ऑलरेडी चल रहे हैं. ठीक है, सो आई एम टॉकिंग अबाउट मई और जून 2021. तो आपका फिलहाल 21 का तो अपॉर्चुनिटी नहीं है. What we are definitely looking at कि आज अगर कोई बच्चा 12th स्टैंडर्ड में है, even if उसका एग्जाम पोस्टपोन हो चुका है, even if उसका एग्जाम पोस्टपोन हो चुका है, वो नवंबर या दिसंबर 21 में डेफिनेटली एग्जाम दे सकता है. Here is where you have to try and focus all your attention on it. नवंबर या दिसंबर 21. अब अगर आपको नवंबर या दिसंबर 21 में एग्जाम देना है तो आपको इंस्टीट्यूट के साथ, ICAI के साथ 30th जून तक रजिस्टर करना पड़ेगा. सो इट इज द 30th जून ऑफ द सेम ईयर, 30th जून ऑफ द सेम ईयर. सो यू शुड बी रजिस्टरिंग टिल द 30th ऑफ जून 21. तो आप नवंबर या दिसंबर में एग्जाम के लिए एलिजिबल होंगे, नवंबर या दिसंबर के एग्जाम के लिए एलिजिबल होंगे. ये रजिस्ट्रेशन यूजुअली आपके 10th के डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे भी आपको दिया जा सकता है. ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है कि आप 12th पास होने चाहिए, बट रजिस्ट्रेशन के लिए 12th पास होना जरूरी नहीं है, एग्जाम देने के लिए 12th पास होना जरूरी है. तो अब प्रोसेस कैसे चलेगा, तो हम पहले रजिस्टर करेंगे, फिर अपना 12th का एग्जाम होगा, उसका रिजल्ट आएगा, हमें वो रिजल्ट इंस्टीट्यूट को ईमेल करना पड़ेगा, फिर हम एग्जाम देने के लिए क्या होंगे बेटा, एलिजिबल होंगे. तो आप रजिस्ट्रेशन बिना 12th के डॉक्यूमेंट्स के भी कर सकते हो. ओके, बट फाइनली यू हैव टू व्हाट बेटा, गिव द प्रूफ दैट यू हैव पास द 12th बिफोर गिविंग द एग्जाम. ठीक है, अब सबसे बड़ी कंसर्न की बात यह है बेटा कि अगर आप ये नवंबर 21 का जो अपॉर्चुनिटी है वो मिस कर गए, मतलब आपने 30 जून तक रजिस्टर नहीं किया, तो आप सोचो बेटा आपके लिए जो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी है एग्जाम देने का वो मई या जून 2022 में आएगा. मई या जून 2022 मतलब स्ट्रेट आपको 6 महीने का एक क्या होगा बेटा, गैप मिल जाएगा. सो दैट इज व्हाई वी आर इंसिस्टिंग द स्टूडेंट्स कि जिनको बहुत सीरियसली सीए करना है, please go ahead and go ahead and register for your November and December exams. तो आपका लास्ट डेट क्या है बेटा, 30th जून है. 30th जून, ये नोट कर लो बेटा. एनीबॉडी हु इज इंटरेस्टेड इन सीए, प्लीज नोट दैट योर लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इज द 30th ऑफ व्हाट बेटा, जून, अगर आपको एग्जाम देनी है इन द मंथ ऑफ नवंबर और दिसंबर. ठीक है, आई होप आई एम क्लियर देयर. अब बेटा आपको इंस्टीट्यूट के साथ जब रजिस्टर करना है तो योर रजिस्ट्रेशन फी विल बी 9,800 rupees, and this will include your study material also. The books will be couriered to you. The books will be what बेटा, couriered to you. वो आपके एड्रेस तक पहुंच जाएंगे. ओके, चलिए अब लेट्स टेक अ लुक इनटू व्हाट बेटा द सब्जेक्ट्स, कि हमको क्या क्या सब्जेक्ट्स हो सकते हैं. तो अगर आप देखें यहाँ पे तो बेटा आपको आइडियली यहाँ पे 4 सब्जेक्ट्स होते हैं फॉर सीए फाउंडेशन. यू हैव 100 मार्क्स ईच सब्जेक्ट, तो टोटल आपका 400 मार्क का एग्जाम होता है. सो टोटल 4 सब्जेक्ट इज व्हाट बेटा, 400 मार्क्स.
4 सब्जेक्ट इज हाउ मच बेटा 400 मार्क्स. सब्जेक्ट्स मैं आपको सिर्फ अभी नाम ही दे रहा हूं. तो आपके पास है अकाउंटिंग, जो आपके लिए फेमिलियर होगा बेटा. सो यू हैव व्हाट बेटा, द सब्जेक्ट ऑफ अकाउंटिंग हियर. ठीक है. देन यू हैव बिजनेस लॉ, ये आपके लिए एकदम नया सब्जेक्ट है बेटा. एंड यू हैव द बिजनेस correspondence and reporting. This is more like your SP. Then obviously you have the business mathematics and logical reasoning. अब यहां पे लोगों को शायद थोड़ा डाउट आ गया कि सर मैथ्स तो हमको इतना अच्छा नहीं लगता, तो क्या आगे भी हमको मैथ्स आएगा? तो बेटा नहीं, ये सिर्फ फर्स्ट लेवल फाउंडेशन में ही आपको मैथमेटिक्स आएगा. इसके बाद के जो 2 लेवल है, इंटर एंड फाइनल, उसमें आपको मैथमेटिक्स नहीं आएगा. दिस मैथ्स इज ऑल्सो ऑलमोस्ट सिमिलर टू द 12th का मैथ्स. प्लस आपके पास बेटा एक लॉजिकल रीजनिंग करके भी ये सब्जेक्ट है, जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे लॉजिकल क्वेश्चंस होंगे. ठीक है. सो मैथ्स भी थोड़ा सा है, फर्स्ट लेवल के लिए ही है, एंड वो भी सीए के लिए ही है. ठीक है. देन यू हैव द बिजनेस इकोनॉमिक्स, ये तो आपको पता ही है. एंड देयर इज अ न्यू सब्जेक्ट नोन एज बिजनेस कमर्शियल नॉलेज. ये आपका ओसी के जैसा सब्जेक्ट है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स के जैसा. ऐसे बेटा आपके पास 4 सब्जेक्ट है. अब बेटा सीए में सबसे इंपॉर्टेंट बात जो इसको टफ बनाती है, ये है इसका पासिंग क्राइटेरिया. ये है इसका पासिंग क्राइटेरिया. नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द पासिंग क्राइटेरिया. पासिंग के लिए आपको हर सब्जेक्ट में मिनिमम 40% मार्क्स लाना जरूरी है. हर सब्जेक्ट में आपके पास 40% मार्क्स होना जरूरी है बेटा. प्लस आपको जो टोटल है वो 50% मार्क्स लाना चाहिए. आपका जो टोटल है वो क्या होना चाहिए बेटा, 50% होना चाहिए. कुछ समझ नहीं रहा है सर, थोड़ा सा अच्छे से समझाएंगे तो बेटर होगा. तो लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड हियर बेटा. ठीक है. तो मैं यहाँ पे बोलता हूं मेरे पास 4 सब्जेक्ट है. सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3 एंड सब्जेक्ट 4. हर एक सब्जेक्ट 100 मार्क्स का है. मतलब मेरा चारों सब्जेक्ट का टोटल मिला के 400 हुआ. ठीक है. अब बेटा पासिंग के लिए मुझे हर सब्जेक्ट में भी 40 लाना है, और मुझे जो ये सारे सब्जेक्ट का टोटल है ये भी 50% चाहिए. मतलब मान के चलिए मुझे हर सब्जेक्ट में 45 मार्क्स मिलते हैं. ये बेटा आगे सीए के साथ साथ सीए में और सीएस के लिए भी सेम है. हाँ बेटा. ओके. तो मान के चलो मुझे हर सब्जेक्ट में कितने मिले बेटा, 45 मार्क्स मिले. तो मेरी टोटल कितनी हुई 180. बताइए, 180. सो इफ माई टोटल, एक मिनट दीजिए, मेरे पीसी में कुछ तो सो बेटा इफ माई टोटल इज 180. अब बेटा मैंने मेरे हर सब्जेक्ट में 40% तो कमा लिया, पर मेरा जो ये ग्रैंड टोटल है, ये टोटल जो है वो 200 मार्क्स नहीं होता. क्यों मुझे 200 लाने हैं? मुझे 400 में से एटलीस्ट 200 तो लाना जरूरी है. मैं यहां पर फिर भी फेल माना जाऊंगा. अगर मान के चलो मुझे ऐसे मार्क्स मिल गए हैं कि मुझे 61 मिला, 65 मिला, 45 मिला एंड 39 मिला, तो मेरा टोटल बेटा 210 हो जाएगा, 210. सो क्या मुझे हर एक सब्जेक्ट में 40 के ऊपर मार्क्स मिले हैं? तो 39. मतलब मैं ये सब्जेक्ट में फेल हो गया हूं. इसीलिए इवन दो मेरा टोटल 200 मार्क्स से ज्यादा है, इट इज मोर देन 50%, बट स्टिल आई एम गोइंग टू बी फेल्ड. ठीक है. तो आपको समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं बेटा? आपको दोनों क्राइटेरिया सेटिस्फाई करने पड़ेंगे कि मुझे हर एक सब्जेक्ट में 40 मार्क्स से ज्यादा लाना पड़ेगा. सो मान के चलो 55 है, तो हर एक सब्जेक्ट में 40 मार्क्स से ज्यादा है, एंड हियर माय टोटल इज 220 व्हिच इज आल्सो मोर देन 50%. इधर मैं हो जाऊंगा पास. आर वी गेटिंग दिस बेटा? तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है जो आपको समझना पड़ेगा कि बेटा अपने को
हर एक सब्जेक्ट में भी कितने लाने हैं बेटा 40%, एंड जो टोटल है वो 400 में से अपने को कितने लाने पड़ेंगे 200 लाने पड़ेंगे. एंड अगेन आई एम सेइंग दिस इज सेम फॉर CS एंड CMA ऑल्सो इफ यू आर प्लानिंग टू डू दैट. चलिए तो आगे बढ़ लेते हैं. तो दिस इज विथ रिगार्ड्स टू योर CA कोर्स. अब बेटा आते हैं CS की तरफ. CS थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा अलग है. अब CS में भी बात वही हुई बेटा. देयर इज नो कॉलेज, देयर इज एन इंस्टीट्यूट कॉल्ड एज द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया. इसको हम लोग ICSI बोलेंगे. इसका भी वेबसाइट है, ये एक्चुअली छोटा है तो मैं लिख देता हूं आपके लिए www.icsi.edu. ठीक है, ऊपर ICAI.org था, इधर ICSI.edu है. यहां पर भी जाओगे आपको काफी इंफॉर्मेशन मिल जाएगा. अपना ICSI का जो CS का एग्जाम्स होता है कंपनी सेक्रेटरी का, वो भी 3 लेवल्स में है. सो यू हैव द CS एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट. इसको हम लोग EET या EET बोलते हैं. अभी इसका नाम ही देखो, एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस. जो सेकेंड लेवल है वो है एग्जीक्यूटिव, एंड ये सेकेंड लेवल को एंटर करने के लिए तुमको फर्स्ट लेवल पार करना पड़ेगा. ठीक है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज द एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट. Then you have the CS executive, and the final stage is what you call as the CS professionals. The final stage is what you call as the CS professional. Okay? अब वापस थोड़ा एग्जीक्यूटिव के बारे में, EET के बारे में बात करेंगे. तो बेटा मैं क्यों बोला डिफरेंट है, तो देख लीजिए यहाँ पर बेटा आपके जो एग्जाम्स है वो साल में 4 टाइम्स हेल्ड किए जाते हैं, 4 बारी. अनलाइक CA जहां पे सिर्फ 2 टाइम्स होता है, यहाँ पे 4 टाइम्स होता है. कभी कभी होगा. So it will be in the month of May, July, November and January. May, July, November and January. Respective months के कोई भी सैटरडे या संडे ऑफ द सेकेंड और थर्ड वीक में ये एग्जाम्स होंगे, पर ये डेट्स चेंज होते हैं. जैसे कि जो जुलाई सेशन, मई सेशन वाला था वो अभी कल ही हुआ, 8 मई को द एग्जाम वाज शेड्यूल्ड. तो वो लोग ने सेकेंड थर्ड वीक बोला है, पर वो लोग कभी कभार डेट अपने हिसाब से चेंज भी करते हैं. हाँ, पर इट विल बी इन द मंथ ऑफ मई, जुलाई, नवंबर एंड जैन, ऐसा आप पकड़ के चलिए. अब बेटा यहाँ पे रजिस्ट्रेशन डेट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अभी सबसे पहला सोचो बेटा अपने लिए कौन सा रेलिवेंट एग्जाम हो सकता है, आप कौन से एग्जाम्स दे सकते हो बेटा. तो आज हम लोग खड़े मई के अंदर, तो आप जुलाई का भी दे सकते हो और नवंबर का भी दे सकते हो. पर दिक्कत यह होगा कि आपने अगर जुलाई के बारे में सोचा तो आपका पढ़ाई नहीं होगा बेटा. पढ़ाई तो करना पड़ेगा ना, एग्जाम देनी है तो. सो वी विल नॉट टेक इनटू अकाउंट जुलाई फॉर द टाइम बीइंग. वी आर अगेन कमिंग टू फोकस ऑन व्हाट बेटा, नवंबर. सो नवंबर 2021 इज द अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर अस टू गिव द CS एग्जाम्स. अब रजिस्ट्रेशन डेट्स पे बहुत ध्यान दो बेटा, इधर घाई नहीं करना है. यहां पे रजिस्ट्रेशन आपको सिर्फ 16 जून से 15 अक्टूबर के बीच में ही करना है. अगर आपने 16 जून के पहले रजिस्टर किया तो आप जुलाई एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाओगे. अपना टारगेट जुलाई नहीं है, अपना टारगेट है नवंबर एग्जाम्स. So for the November exams, keep these 2 dates into mind beta. You have to start your registration after or on or after 16th June, and you have to do till what beta 15th of October. कोई भी बच्चा घाई करके ये डेट के पहले रजिस्टर मत करना, वरना आप जुलाई के लिए रजिस्टर हो जाओगे, आपके पैसे वेस्ट हो जाएंगे. ओके, मान के चलो सर हमको नवंबर नहीं देना है, हमको जनवरी देना है. ये जनवरी कौन सा आएगा बेटा? अगेन this will be Jan 2022. Okay, this will be what beta? This will be in the month of Jan 2022. Again keep in mind the registration dates. यहाँ पे you have to register from 16th October till 15th December. 16th October till 15th December. यहाँ पे registration date बहुत critical है. बच्चे इधर ही आके घाई कर जाते हैं, या जो भी किसी को शायद ये डेट्स के बारे में पता नहीं होता, वो लोग बच्चों को मिसगाइड करते, बोलते कर लो रजिस्टर, फिर बच्चा जुलाई के एग्जाम के लिए रजिस्टर हो जाता है. ठीक है, तो ये ध्यान में रखना. यहाँ पे अच्छी बात ये है बेटा
कि आपका जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो सिर्फ 1000 रुपए है, एज कंपेयर टू सीए जहां पे आपको 9800 भरना पड़ता है. बट द डाउनफॉल इज कि दे डू नॉट गिव यू बुक्स. स्टडी मटेरियल www.icsi.edu पे वो लोग ने पोस्ट करके रखा है, हमको उसको डाउनलोड करके प्रिंट आउट लेने का जिम्मेदारी अपना है. दे डोंट गिव द स्टडी मटेरियल. ठीक है. यहां पर अगेन एक डिफरेंट बात यह है कि बेटा 4 सब्जेक्ट तो है, बट यहां पर हर एक सब्जेक्ट बेटा 50-50 मार्क्स का है. सो यहाँ पे टोटल 200 मार्क्स हो जाए. यहाँ पे टोटल कितना होता है बेटा? 200 मार्क्स. अगेन द सब्जेक्ट्स आर वेरी वेरी सिमिलर. जैसे है बिजनेस कम्युनिकेशन, ये आपके एसपी की तरह है. देन लीगल एप्टीट्यूड, ये लॉ है. अगेन ऊपर भी हमने लॉ देखा था, बिजनेस लॉ, ये उसी का भाई है. देखो वापस लॉजिकल रीजनिंग भी आ गया. गुड पार्ट इज सी, यहाँ पे मैथ्स नहीं है, यहाँ पे क्या है? लॉजिकल रीजनिंग है. देन यू हैव इकोनॉमिक्स and then you have some different subject called as current affairs. अब एकदम जब ये कोर्स लॉन्च हुआ था तब इंस्टीट्यूट का मानना ये था हम लोग है ना 30 मार्क का एक ओरल एग्जाम लेंगे, वाइवा. ठीक है. अब बेटा पैंडेमिक की वजह से जो CSET के एग्जाम्स हो रहे हैं ये सारे ऑनलाइन हो रहे हैं. आपको घर बैठे एग्जाम देना है, तो ये लोग वाइवा तो नहीं ले सकते. तो अब ये लोग ने क्या किया है, बोला वाइवा को फिलहाल कैंसिल कर देते हैं, एंड ये जो करंट अफेयर्स है ये 20 मार्क के बदले पूरे 50 मार्क का हो गया. तो करंट अफेयर्स पूरे 50 मार्क्स का क्या ये लोग बेटा डाल रहे हैं. ठीक है. सो दिस इज हाउ द चेंजेस आर हैपनिंग विथ रिगार्ड्स टू योर CS का EET एग्जाम्स. बस पासिंग क्राइटेरिया भी एकदम सेम, वही 40 मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट एंड 50 मार्क्स इन ऑल द सब्जेक्ट. गुड पार्ट इज ये सारे के सारे पेपर आपके MCQ पैटर्न में आते हैं. ठीक है. तो MCQ पैटर्न में आपको ऑनलाइन देना पड़ता है. वो लोग CS वाले एक मॉक टेस्ट भी लेते हैं जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि आप किस तरीके से MCQs वगैरह दे सकते हो. ठीक है. सो दिस इज विथ रिगार्ड्स टू CA. अगर आप CA के बारे में मेरे को पूछो कि इसमें से क्या क्या है, तो बिजनेस लॉ एंड ये जो बेटा इकोनॉमिक्स वाला पार्ट है ये दोनों MCQs है, एंड बाकी दोनों आपको नॉर्मली क्या करना पड़ता है बेटा? सॉल्व करना पड़ता है. ठीक है. तो यहाँ पे पूरा 100 मार्क्स का MCQ एग्जाम होगा. दैट इज विद CS. कमिंग टू CMA, आई विल स्टिल इन्फॉर्म यू एनीबॉडी हु इज इंटरेस्टेड. इंस्टीट्यूट ऑफ क्या बेटा? कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया. ठीक है. इसको ICMAI बोलेंगे, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ऐसे इसका फुल फॉर्म. वेबसाइट है www.icmai.in. ठीक है. तीनों के वेबसाइट्स अलग है. यहाँ पे भी कोर्सेस वैसे ही है जैसे CA के है बेटा, फाउंडेशन, इंटर और फाइनल. यहाँ पर भी एग्जाम साल में 2 बार होगी. एक तो जून मंथ में होगी, दूसरी दिसंबर मंथ में होगी. रजिस्ट्रेशन डेट्स देखिए बेटा, अगर आपको कोई भी मंथ में जून में रजिस्टर करना हो तो मान के चलो मेरे को जून 2021 में एग्जाम देनी है, तो मुझे 31 जनवरी तक, सो मुझे 31/1/21 तक रजिस्टर करना है, और दिसंबर 21 में देनी है तो मुझे 30 जून 21 तक क्या करना पड़ेगा? रजिस्टर. यहाँ पर भी बेटा आपको अभी समझ गए होंगे, आप इतने तो स्मार्ट बच्चे हो मेरे, कि अपना अभी अगर आपको CA में देना है तो आपको कब कौन सा टारगेट करना पड़ेगा बेटा? दिसंबर टारगेट करना पड़ेगा, जहां पे आपका 36/21 is the last date of registration. The fees is बेटा 4,000 rupees. Good part includes also study material. 4,000 plus आपका study material भी आएगा आपके पास. Subjects भी यहाँ पे 4 subjects होंगे, 100 marks each. तो ये भी 400 marks. देखो यहाँ पर भी देखो सबके subjects almost same ही होंगे. Fundamentals of economics, accounts, वापस देखो law, ethics and management and statistics, mathematics and statistics, sorry. तो यहाँ पर भी maths आपको थोड़ा झेलना पड़ेगा. And then you have the passing criteria which is the same. ठीक है. तो this is the basic information with regards to CA, CS and CMA. अब मैं आपके कुछ डाउट्स लेना चाहूंगा जो अभी तक शायद आपके दिमाग में आ गए होंगे, तो मैं उसी को थोड़ा सा एड्रेस करना चाहूंगा. अब सभी लोग सोचेंगे कि सर हम तो 12th के बाद ग्रेजुएशन करेंगे,
तो क्या ये कोर्सेस ग्रेजुएशन के साथ किए जाते हैं या मेरे को आफ्टर ग्रेजुएशन ये कोर्सेस करने पड़ेंगे? तो बेटा ऑप्शन दोनों है। आप 12th के बाद अलोंग विथ योर ग्रेजुएशन भी कर सकते हो एंड आफ्टर ग्रेजुएशन भी कर सकते हो, पर हम लोग हमेशा बोलते हैं कि हो सके तो ग्रेजुएशन के साथ ही करो। इसके दो रीजन है बेटा। एक तो जब आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, आप कॉलेज में हो, आप ऑलरेडी पढ़ाई के मोड में होते हो, आपके पास और कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होता, तो आपको चुपचाप से पढ़ाई पे कॉन्सेंट्रेट करना है, अच्छे से एग्जाम देनी है, पास होना है। अगर आप आफ्टर ग्रेजुएशन करने का कोशिश करते हो तो कहीं ना कहीं फैमिली का थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाता है, हमको ऐसा लगता है कि हमको भी फैमिली को थोड़ा सपोर्ट करना चाहिए, तो हम जॉब वगैरह करना चालू कर देते हैं। अगर ऐसा हो जाता है, बहुत लाइकली है आपका जो मन है वो डिविएट हो जाए, तो फिर है ना बेटा पोस्ट ग्रेजुएशन ये करना थोड़ा दिक्कत वाला हो जाता है काम, ये थोड़ा दिक्कत वाला हो जाता है काम। सो इट इज ऑलवेज रेकमेंडेड, आप देखो आप दोनों ही कर सकते हो, बट इट इज ऑलवेज रेकमेंडेड कि आप ग्रेजुएशन के साथ ही करो। इससे ये और एक फायदा होता है कि ये जो सीए सीएस सीएमए में आप पढ़ते हो, इसका काफी हेल्प आपको नॉर्मल ग्रेजुएशन के लिए हो जाता है ना। तो आप नॉर्मल ग्रेजुएशन में बहुत आराम से अपना पढ़ाई कर सकते हो, बिकॉज आप बहुत हाई एंड पढ़ रहे हो। ठीक है, सो दैट इज हाउ वी आर लुकिंग एट व्हाट बेटा, पैरेलल कोर्सेस। ठीक है, चलिए अब दूसरी क्वेरी आपके दिमाग में ऐसे आ सकती है कि सर हमारे पास तो कितने सारे ऑप्शंस हैं ग्रेजुएशन के लिए। ठीक है, तो हमारे पास कितने सारे ऑप्शंस हैं ग्रेजुएशन के लिए। मान के चलो अपने पास बीकॉम है, फिर बीएमएस है, फिर बीबीआई है ना, बैफ है, फिर बीएमएम है। तो हम अगर सीए सीएस या सीएमए करना चाहते हैं तो इनमें से कौन सा कोर्स ले? तो अगेन द आंसर विल बी बेटा आप कोई भी कोर्स ले सकते हो, सीए सीएस या सीएमए डज नॉट स्टॉप यू। ठीक है, बट अगेन रेकमेंडेड है कि अगर आप ये तीनों पे बहुत ज्यादा फोकस्ड हो, मतलब आपका श्योर है कि आपको यही करना है, तो रेकमेंडेड है कि आप प्लेन बीकॉम ले लो। रीजन क्या है? रीजन बीइंग बेटा, ये बाकी के जो भी प्रोफेशनल कोर्सेस है ना बेटा, इसमें आपको काफी असाइनमेंट्स, काफी प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं, तो कॉलेज की तरफ से काम ज्यादा है, पढ़ाई का भी लेवल थोड़ा हाई है, तो आपको सीए सीएस या सीएमए के लिए टाइम नहीं मिलता है। बीकॉम करोगे तो जिंदगी एकदम आसान है, ज्यादा पढ़ाई का टेंशन नहीं है, आप आराम से बीकॉम के साथ इन तीनों पे ध्यान दे सकते हो। पर फिर कोई बच्चा बोलेगा कि क्या ये प्रोफेशनल जो है बाकी बीएमएस के साथ अगर मैं सीए या सीएस या सीएमए करना चाहता हूं तो क्या मेरे से नहीं होगा? तो डेफिनेटली होगा बेटा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप कर सकते हो, थोड़ा पढ़ाई ज्यादा करना पड़ेगा। तो आप वो दिमाग का मतलब ऐसा मन में तैयारी बनाकर रखिए कि हमको फिर पढ़ाई ज्यादा करनी पड़ेगी। आप डेफिनेटली किसी के भी साथ ये पैरेलल कोर्सेज कर सकते हो, एंड आप कुछ भी कीजिए, मतलब आप बीकॉम भी करो, बीएमएस भी करो, बीबीआई भी करो, ये सीए सीएस या सीएमए का पढ़ाई जो है आपको तीनों कोर्सेज में हेल्प जरूर करेगा। ठीक है, बट एक मैं आपको वर्ड ऑफ कॉशन बोलूंगा कि अगर आपको ये तीनों भी प्रोफेशनल कोर्सेज करने हैं तो चूज मॉर्निंग कॉलेज। ठीक है, चूज मॉर्निंग कॉलेज बेटा, क्योंकि इन तीनों कोर्सेज के लिए आपको हैंड होल्डिंग जरूर लगेगा, आपको यूजुअली क्लासेस लगाना पड़ेगा, एंड क्लासेस जो भी होते हैं ये हमेशा आफ्टरनून में होते हैं। तो अगर आपने गलती से मॉर्निंग की जगह आफ्टरनून का भी कॉलेज ले लिया तो आपका ये क्लास और कॉलेज दोनों एक साथ टाइम क्लैश होगा। हमारे पास ऐसे बहुत सारे बच्चे आते हैं जो ये ना पता होने के कारण आफ्टरनून कॉलेज लेते हैं। यूजुअली बैफ के कॉलेजेस जो होते हैं, है ना, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, ये आफ्टरनून के होते हैं, तो बाद में वो बेचारे फिर फंस जाते हैं, उनको सीएस के या सीए के लिए क्लासेस वगैरह के लिए ज्यादा ऑप्शंस नहीं बच जाते। सो यू हैव टू मेक श्योर कि अगर आपको आराम की मतलब कोई टेंशन नहीं चाहिए तो टेक योर मॉर्निंग कॉलेजेस। यूजुअली आपका रूटीन ऐसा हो जाएगा कि आप सुबह कॉलेज अटेंड करोगे, फिर क्लास अटेंड करोगे, फिर घर जाके आपको थोड़ा सा रिवाइज वगैरह करना पड़ेगा। ठीक है, सो दैट इज द सेकंड फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन टू मी।
द थर्ड फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन इज बेटा कि क्या मेरे को सीए या सीएस या सीएमए करने के लिए बहुत बहुत ज्यादा पढ़ाई में अच्छा होना पड़ेगा? क्या मेरे को 80 प्लस मार्क्स चाहिए तो ही मैं ये 3 कोर्सेस कर पाऊंगा? द मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। तो बेटा अगेन ऐसा कुछ नहीं है, आप एक एवरेज स्टूडेंट रहोगे तो भी आप आराम से सीए या सीएस या सीएमए कर सकते हो। तो आपके सामने एक लाइव एग्जांपल है। आई वाज अ वेरी एवरेज स्टूडेंट एज फार एज सीए सीएस या सीएमए इज कंसर्न्ड। तो मुझे मान के चलो अब 12th में आई हैड 67%, इन माय टीवाई आई हैड 62%। ओके, फिर भी बीइंग दैट एवरेज टुडे आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैंने अपना पढ़ाई पूरा किया है। तो ऐसा कोई बात नहीं है। The only thing that you require to do these courses is a lot of dedication and willpower. ठीक है, आपको बहुत डेडिकेशन, या मान के चलो यहां पे मैं डिसिप्लिन भी लिखना चाहूंगा, तो आपको डिसिप्लिन भी बहुत चाहिए। ठीक है, कि ये अपना 12th का एग्जाम्स नहीं है जहां पे हम सोचते हैं कि लास्ट के 4 महीने में पढ़ के आराम से पास हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता, यहाँ पे आपको कंटिन्यूअसली पढ़ाई करना पड़ता है बेटा। ठीक है, सो दिस आर ऑलमोस्ट द फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस दैट आई गेट विथ रिगार्ड्स टू दीज 3 कोर्सेस। ठीक है, अब बेटा what obviously I can help you today here is I am definitely there to guide you. आपको कभी भी कोई भी क्वेरीज रहे इन तीनों कोर्सेज में तो मैं आपको डेफिनेटली हेल्प कर सकता हूँ। देयर आर ऑल्सो अदर कोर्सेज लाइक एक्चुअरीज वगैरह, बट सिंस आई एम नॉट इनटू इट आई विल नॉट बी एबल टू हेल्प यू टू मच अबाउट इट। एटलीस्ट आई कैन गाइड यू टू पीपल जो आपको क्या कर सकेंगे बेटा, हेल्प कर सकेंगे। ठीक है, बट हाँ मैं हमारा जो इंस्टीट्यूशन है बेटा, यहाँ में आप यहाँ पे आप अगर देख लो तो आई एम अ सीए। ठीक है, मैं तो सीए हूं। देन देयर इज माय वाइफ, शी इज अ सीएस। ओके, एंड एक हमारे फ्रेंड है वो खुद सीएमए है। तो हमारे पास ऐसे तीनों लोग हैं जो आपको प्रॉपरली ये तीनों कोर्सेज के लिए क्या कर पाएंगे बेटा, गाइड कर पाएंगे। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी आर लुकिंग। अभी अगर मैं बेटा हमारे इंस्टीट्यूशन का बात करूं तो वी आर एन इंस्टीट्यूशन विच इज अराउंड 4 to 5 years old, but I am into the teaching field since last 10 years. My wife is into the teaching field since last 5 to 6 years. ठीक है, so what we are doing this year is बेटा हमने यहाँ पर सीए या सीएस के क्लासेस रखे हैं। We have not yet announced the CMA batch. ठीक है, so the good part about the classes is what बेटा, you will only have a batch of 25 students, क्योंकि बेटा अब पढ़ाई जो होगी आपकी कंप्लीटली ऑनलाइन होगी। एंड ऑनलाइन में बेटा इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट 1-to-1 अटेंशन, क्योंकि आप हमारे सामने नहीं होते। तो टू ओवरकम दैट हमने ये सोच के रखा है कि द यूनिक फीचर विल बी कि यू विल ओनली हैव 25 स्टूडेंट विच विल हेल्प अस कि हम एक एक बच्चे को पर्सनली मॉनिटर कर सके। ठीक है, सो दैट इज ऑल्सो द गोल ऑफ व्हाट बेटा, पर्सनलाइज अटेंशन। ऑब्वियसली जब तक कोरोना नहीं जाता हमको ऑनलाइन ही लेक्चर्स रखने पड़ेंगे, बट द लेक्चर्स विल बी एज इंटरैक्टिव एज वी आर डूइंग। ठीक है, तो इन द लेक्चर्स आपके वीडियोस भी ऑन होते हैं, आप हमसे ऑन द स्पॉट क्वेरीज भी पूछ सकते हो, हम आपको होमवर्क भी देते हैं, क्लास वर्क भी देते हैं। अब कोई बच्चा समझो लेक्चर मिस भी कर गया कोई रीजन की वजह से, तो उसको एक ऑनलाइन रिकॉर्डिंग का बैकअप भी मिल जाता है, क्योंकि हमारा हर लेक्चर रिकॉर्ड होता है, अपने जो चैनल पे अपलोड होता है। एंड अगर आप लेक्चर मिस कर जाते हो या आपको लेक्चर रिवाइज करना है, फिर से एक बार देखना है, तो आपके पास ऑब्वियसली वो लेक्चर पड़ा हुआ है, आप आराम से देख सकते हो। The portions are been taken care of very nicely. The best highlight that we have is my regular test series बेटा। ये बहुत सारे क्लासेस जो है वो बोलते हैं पर करते नहीं है, बट वी पुट अप अ लॉट ऑफ टाइम इन द रेगुलर टेस्ट सीरीज। मेरी लास्ट बैच जो गई थी बेटा ईईटी की, उसमें ऑलमोस्ट हमने 3 महीने में 50 टेस्ट लिए थे बच्चों के। ठीक है, विच मेड श्योर दैट दे स्कोर वेरी गुड रिजल्ट्स। एंड जैसे मैंने आपको बताया हमारे जो भी फैकल्टीज है वो प्रोफेशनली क्वालिफाइड है। जैसे मैं पढ़ाता हूँ, मैं सीए हूँ, देन रिद्धि मैम है वो सीएस है। सो दीज आर आवर सम रिजल्ट्स दैट वी हैड। ये मैंने ऐसे ही डाला है आपको थोड़ा दिखाने के लिए।
एंड एक हमारा बैच था जिसमें वी हैड नवंबर 20 का बैच में 100% रिजल्ट्स. दिस वाज लाइक अपना फर्स्ट बैच था ईईटी का. देन हमारा नेक्स्ट बैच था जैन का. इसमें हमारे 12 बच्चे थे. 12 में से 8 बच्चे पास हुए, 2 बच्चे अनफॉर्चुनेटली एग्जाम ही नहीं दे पाए, एंड फिर बाकी के जो 2 थे वो क्या हो गया बेटा, फेल हो गए. ठीक है. देन बेटा अब आपका जो अपकमिंग बैचेस है मैं उसका भी एक छोटा सा आपको डिटेल दे देता हूं बेटा. सो डिटेल्स ऑफ सीए फाउंडेशन बैच. ओके, द बैच इज गोइंग टू स्टार्ट ऑन द 15th ऑफ मे. ओके, ये 15 से अपना बैच अभी स्टार्ट होगा. द गुड पार्ट इज, एज आई सेड, आप मुंबई के, महाराष्ट्र के कोई भी कोने में हो तो भी आप हमारे साथ ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि ये फुल ऑनलाइन बैच होने वाला है. देयर इज नो कंस्ट्रेंट ऑफ स्पेस. ओके, ऐसा नहीं होगा कि बीच में ही लेक्चर्स फिजिकल चालू हो जाएंगे फेस टू फेस और आपको आना पड़ेगा. हमारा क्लास जो है वो भांडुप में है, तो देयर इज नो नीड फॉर यू टू ट्रैवल टिल भांडुप. आप ऑनलाइन ही बैठोगे. एंड वी आर फोर्सिंग कि नहीं तो भी दिसंबर तक शायद अपना जो एजुकेशन सेक्टर है वो ऑनलाइन ही होगा. ठीक है. सो बैच बेटा आपका सीए फाउंडेशन का 15 मई से स्टार्ट हो रहा है. ये 15 सितंबर तक चलेगा, क्योंकि आपके एग्जाम नवंबर तक होगी. बीच में आपका एक टेस्ट सीरीज होगा, आपको टाइम भी लेना चाहिए. ऑब्वियसली क्वेश्चन आता है आपके दिमाग में, सर बीच में हमारा एग्जाम्स आ गया 12th का तो क्या करेंगे. तो बेटा हम लोग आपको 1 मंथ का ब्रेक देंगे. दिस इज फॉर योर प्रिपरेशन एंड ऑल्सो फॉर यू टू अपीयर फॉर योर 12th एग्जाम. तो एग्जाम का टाइम है वो मिला के आपको पूरे 1 महीने का ब्रेक दिया जाएगा. देखो एग्जाम तो देनी है, आप धीरे धीरे रिवाइज करना स्टार्ट रखो ही, और जब भी एग्जाम अनाउंस होंगी हम आपको अकॉर्डिंगली 1 मंथ का ब्रेक दे देंगे. बट बेटा एग्जाम के बाद के लिए रुक नहीं सकते, क्योंकि अगर एग्जाम के बाद के लिए रुके तो सीधा मई 22 चले जाएंगे. हमको तो नवंबर 21 ग्रैब करना है. ठीक है, इसीलिए वी आर स्टार्टिंग द बैचेस. अभी ये अपना क्लास का फीस है बेटा. अगर आप 1 टाइम पे करोगे तो हमने बहुत नॉमिनल अमाउंट रखा है, एज मच एज व्हाट बेटा 25,000 फॉर योर फीस. ओके, आप अगर देखो यूजुअली यहाँ पे मार्केट में 36,000 रुपीज तक फीस चार्ज किया जा रहा है, बट वी ऑलवेज इंटेंड टू हेल्प आवर स्टूडेंट्स टिल द एक्सटेंट दैट वी हैव बेटा. ओके, सो वी हैव केप्ट द फीस एट वेरी लो ऑफ 25,000 अगर आप 1 टाइम पेमेंट करते हो, और अगर आप इंस्टॉलमेंट में पे करोगे तो आपको 28,000 तक जाएगा. इंस्टॉलमेंट विल बी 4,000 एट द टाइम ऑफ एडमिशन एंड द बैलेंस यू विल हैव टू पे इन 3 इंस्टॉलमेंट्स. ठीक है. अगेन बेटा वी आर पुटिंग अप सम डेमो लेक्चर्स. तो 15 तारीख से 4 दिन आपके फ्री डेमो लेक्चर्स होंगे. ठीक है. सो यहाँ पे आपको कोई कंपल्शन नहीं है फी पे करने का. आपको अगर ये जानना है कि हम किस तरीके से पढ़ाते हैं तो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज कम अहेड एंड अटेंड द डेमो. अगेन ये जरूरी नहीं है कि आपने डेमो बैठा तो आपको हमारे इंस्टीट्यूशन के साथ एडमिशन लेना ही पड़ेगा. ठीक है. वी डोंट फोर्स द किड्स. इफ यू रिक्वायर यू कम, यू सिट. अगर आपको नहीं भी एडमिशन लेना है आप हमको क्लियरली बता देंगे कि सर वी आर नॉट इंटरेस्टेड, दैट शुड बी ओके. बट इवन इफ यू डोंट टेक द एडमिशन और आपको कोई हेल्प चाहिए, हम लोग आपको डेफिनेटली गाइड करेंगे. ऐसा मत सोचिए कि सर हमने सर के क्लासेस में एडमिशन नहीं लिया तो सर हमको हेल्प नहीं करेंगे. ऐसा नहीं है बेटा. ठीक है. वी आर ऑलवेज देयर टू गाइड यू गाइस. सो द लेक्चर्स विल बी यूजुअली कंडक्टेड एवरी डे 6 PM to 7:30. ये सिर्फ डेमो का टाइमिंग है. आपके नॉर्मल लेक्चर्स जो है वो जब भी चालू होंगे तब दे विल बी फॉर अराउंड 3 to 4 hours एवरी डे, एंड वो दोपहर में होता है 12:30 से वी यूजुअली स्टार्ट. ठीक है. सो दीज आर द डेमो लेक्चर्स फॉर CA. ओके, ये CA के डेमो लेक्चर्स है. सिमिलरली आपको अगर बेटा CS का भी इंटरेस्ट होगा तो वी आर प्रोवाइडिंग फॉर नवंबर 21 बैचेस ऑल्सो फॉर CS. ओके, यहाँ पे भी बैचेस 15 मई से स्टार्ट होंगे, 15 सितंबर तक चलेंगे. सेम 1 मंथ का बेटा आपको ब्रेक मिल ही जा रहा है एग्जाम्स के लिए. यहाँ पे बेटा द फीस अगेन वी हैव ट्राई टू कीप इट वेरी कॉम्पिटेटिव, है ना. सो इट इज ऑलमोस्ट ओनली 12,500. फीस कितना है बेटा अपना, सिर्फ 12,500 होगा. अगर आप 1 टाइम में पे करते हो और आप अगर इंस्टॉलमेंट में पे करते हो तो 14,000 रुपीज होगा. देयर विल बी 2,000 एट द टाइम ऑफ एडमिशन एंड 4,000 दैट इज यू हैव टू पे इन 3 इंस्टॉलमेंट्स. अब
कोई कोई लोगों को वापस डाउट आता है कि क्या सर हमको ये फीस ओवर एंड अबव पे करना है, तो डेफिनेटली बेटा आप अगर सीए करोगे तो आज के लिए लेट मी बी वेरी क्लियर विथ यू, आपको इंस्टीट्यूट में 9,200 भरने पड़ेंगे, ये आईसीएआई के लिए आप भरते हो, प्लस आपको 25,000 या 28,000 डिपेंडिंग अपॉन जो भी है, ये अपने क्लासेस में भरने पड़ेगी, ठीक है। सिमिलरली आप अगर CS कर रहे हो तो आपको 1,000 रुपीज का फीस ICSI में भरना पड़ेगा, प्लस आपको 12,500 या 14,000 जो भी है वो अपने क्लास में भरना पड़ेगा, ठीक है। We will definitely help you with the registration process and everything, as I'm repeatedly saying कि आपको अगर हमारे साथ जुड़ना है, नहीं जुड़ना है, पर कुछ भी क्वेरी हो, वी आर ऑलवेज देयर। हमको हमेशा यही चाहिए कि बच्चे उनकी पढ़ाई में आगे बढ़े, ठीक है। सो विद दैट बेटा हम लोग ने अभी तक CMA का बैच नहीं लॉन्च किया बिकॉज देयर इज वेरी लेस स्टूडेंट्स हु गो फॉर CMA। एज सच अगर आप 3 इंस्टीट्यूट्स में देखो तो आपका थोड़ा स्कोप CMA को कम ही है एज कंपेयर टू CA एंड CS। एक ये भी क्वेश्चन मेरे को अभी जस्ट याद आया बेटा, बच्चे हमेशा सोचते हैं कि सर मैं कैसे डिसाइड करूं कि मुझे CA जाना है या CS जाना है। तो बेटा ये प्लीज ध्यान में रखो कि CA जो है ना बेटा, इसमें प्रैक्टिकल स्टडी या नॉलेज बहुत ज्यादा है। यहां पे आपको बहुत सारा थ्योरी पढ़ना पड़ता है, बहुत सारे लॉ पढ़ने पड़ेंगे। तो आज की तारीख में अगर आपको BK मैथ्स ये सब में इंटरेस्ट है तो वो एक आप इंडिकेशन ले सकते हो कि हाँ मैं CA में डेफिनेटली आई विल एंजॉय डूइंग CA। और आप अगर आपको इकोनॉमिक्स, OC, SP इसमें ज्यादा आपका इंटरेस्ट बनता है तो दैट कुड बी ए इंडिकेटर कि आप CS क्या कर सकते हो बेटा, ले सकते हो, ठीक है। अभी अगेन ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है जो मैं बोल रहा हूँ कि कोई बच्चा SP का बच्चा है तो SP का बच्चा सोचेगा कि क्या सर मैं CA कर ही नहीं सकता, तो डेफिनेटली आप कर सकते हो। किसी बच्चे ने मैथ्स लिया है तो वो मैथ्स का बच्चा भी CS कर सकता है, बट ये एक इंडिकेटर हो सकता है कि अगर आपका ज्यादा झुकाव जो है ना, आपका इंक्लिनेशन अगर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स की तरफ है तो आप CA में एंजॉय करोगे पढ़ना, क्योंकि वहां बहुत प्रैक्टिकल नॉलेज या प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स होते हैं। अगर आपका थ्योरी की तरफ ज्यादा झुकाव है एक्सक्यूज मी, तो आप डेफिनेटली CS ज्यादा एंजॉय करोगे पढ़ने के लिए, ठीक है बच्चा लोग। सो आई होप आई एम वेरी क्लियर विथ अपना जो जो भी अब तक बात हुआ। इफ यू हैव एनी डाउट्स बेटा यू कैन गो अहेड एंड स्टार्ट पुटिंग इनटू योर कमेंट बॉक्सेस। एंड बेटा यहाँ पे भी जैसे मैंने बोला ये CS के लिए भी अपने डेमोज होंगे, ट्राई एंड नोट द डेट्स। डेमो के लिए रजिस्टर करना हो आपको तो आपको ये 2 नंबर्स, मतलब 3 है पर आप 2 में से किसी एक पे कॉल कर सकते हो बेटा, या तो मेरे नंबर पे कीजिए या तो रिद्धि मैम के नंबर पे कीजिए एंड यू कैन गेट जस्ट योरसेल्फ रजिस्टर्ड। रजिस्ट्रेशन का ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है, यू जस्ट हैव टू टेल अस कि सर आई हैव टू अटेंड द डेमो एंड देन वी विल सेंड यू अ लिंक। जो भी आपका डेमो होगा वो ऐसे जूम प्लेटफॉर्म पे ही होगा, तो हम आपको एक दिन पहले लिंक भेज देंगे उसका, ठीक है। मैं बेटा ये जो इंफॉर्मेशन है ये अगर आपको चाहिए तो एक PDF के थ्रू भी आपको भेज दूंगा, ठीक है, बट देन यू विल हैव टू गेट इन टच विथ मी, देन आई विल सेंड इट टू यू। अगर आपको आपके पेरेंट्स के साथ शेयर करना है ये पूरा कोर्स का डिटेल्स जो है तो दैट आल्सो आई कैन सेंड इट टू यू, तो यू कैन जस्ट टेल मी ऑन माय पर्सनल नंबर कि मुझे चाहिए, देन यू विल गेट इट, ठीक है। चलो लेट्स लुक एट क्वेरीज। एनीबॉडी हैज एनी क्वेरीज? No, sir. Thank you. ओके, एक क्वेरी आया है कि इज देयर एनी एज लिमिट फॉर द कोर्सेस। तो कोई एज लिमिट नहीं है बेटा कोर्स के लिए, आप कभी भी रजिस्टर कर सकते हो, सिर्फ अपना 12th स्टैंडर्ड पास होना चाहिए तो ही आप क्या कर सकते हो, रजिस्टर कर सकते हो। यहाँ पे विद द एज लिमिट वन थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू कि पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपको करना है बेटा, पोस्ट ग्रेजुएशन, तो आप जो CA करोगे ना बेटा, वो अगर आप ग्रेजुएशन के बाद करोगे तो आप सीधा इंटर लेवल को रजिस्टर कर सकते हो, बट CS का इवन दो यू आर अ ग्रेजुएट तो भी आपको EET का एग्जाम
देना ही पड़ेगा, तो भी आपको ईईटी का एग्जाम देना ही पड़ेगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपको देखना चाहिए। बिजनेस लॉ आई कहाँ का पूछ रहे हो बेटा आप? CA का पूछ रहे हो या CS का पूछ रहे हो? Accounts are lawful. सॉरी मेरा माइक बंद था। सो मैं बोलता हूँ CS एग्जीक्यूटिव के प्रेपर के लिए ना बेटा, आपको पास पेपर्स देखेंगे तो काफी हेल्प होता है विथ रिगार्ड्स टू योर सब्जेक्ट्स। एंड बेटा यहाँ पे देखो CA में मैंने लिख दिया है कौन से पेपर्स MCQs है, तो वो आपको हेल्प हो जाएगा। हाँ इमरान, मैंने आपका डाउट बोल दिया बेटा कि अगर आपको ग्रेजुएशन के बाद भी बेटा CS करना है तो भी आपको तीनों मतलब वो EET की एग्जाम देनी ही पड़ेगी। यूजुअली ऐसा है कि CA में ग्रेजुएशन के बाद आप डायरेक्टली सेकंड लेवल पे पहुंच जाते हो, बट CS में विद द न्यू कोर्स स्ट्रक्चर आपको EET का एग्जाम पास करना ही पड़ेगा, तो आपको तीनों एग्जाम्स देने ही पड़ेंगे। चलिए, मोर डाउट्स टू कम। तो भी बेटा आप SY BCom में हो तो भी आपको तीनों ही एग्जाम देना पड़ेगा अगर आपको CS करना है तो। आप रजिस्टर कर सकते हो खुद से CA/CT के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है, डॉक्यूमेंट स्कैन करने हैं और वेबसाइट पे अपलोड करने हैं, उनका जो भी फॉर्म आएगा, ऑनलाइन फीस पे करना है एंड देन यू विल बी गेटिंग रजिस्टर्ड फॉर व्हाटएवर द एग्जाम कम्स। चलो चलो बाकी का बच्चा लोग, और कोई डाउट? मैंने जीनल बोला एग्जीक्यूटिव स्टूडेंट्स के लिए बहुत डिपेंड करता है कि आपका अटेम्प्ट कब है। ठीक है, एग्जीक्यूटिव आप देना कब चाहते हो। अगर आपका अटेम्प्ट रिसेंटली है तो द गुड पार्ट इज कि आप जो पास पेपर्स है बेटा उसी को देखकर प्रिपेयर करो, है ना, क्योंकि क्वेश्चंस कब मोस्टली रिपीट भी होते हैं। तो गो टू योर पास पेपर्स, आपके पास वो स्कैनर्स करके भी बुक्स आती है जिसमें पूरे पास पेपर और उसके आंसर्स होते हैं, तो आप वहां से प्रिपेयर करोगे तो इट विल बी बेटर। अगर आप एग्जीक्यूटिव में हो और टैक्स प्रिपेयर करना चाहते हो तो एग्जीक्यूटिव के लिए, ईपी के लिए बेटा, टैक्स के लिए एक बांगर करके ऑथर है जिनमें आपको बहुत सारे एमसीक्यूज देखने मिलेंगे, सो दैट विल बी अ गुड फॉर यू टू गो अहेड एंड स्टडी।
बेटा सीए का रजिस्ट्रेशन डेट्स आप देख लीजिए, आपको अकॉर्डिंगली रजिस्टर करना पड़ेगा। अभी आप 12th में हो क्या जिनल? सॉरी रिमशा, आप 12th में हो क्या बेटा? ओके, सो अगर आप 12th में मतलब 12th क्लियर कर गए हो तो भी आपको ये डेट्स है, तो आप शायद फिर अभी नवंबर का ही एग्जाम देना चाहोगे, तो आपको 30th जून तक बेटा रजिस्टर करना पड़ेगा उनके साथ। 30 जून के आगे आप चले गए तो सीधा आपको मई 22 का एग्जाम फिर आ जाएगा। इनका भी प्रोसेस अभी तो सब कुछ ऑनलाइन ही है बेटा विद द कोरोना, ठीक है। एंड आपको सेम है, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स स्कैन करके अपलोड करने पड़ेंगे, प्लस आपको वो फीस वगैरह पे करना पड़ेगा, आपके घर पे बुक्स आ जाएंगे, देन यू कैन स्टार्ट स्टडी। चलिए बच्चा लोग, मोर क्वेरीज टू कम, और किसी को कुछ क्वेरीज है तो पूछ लीजिए। ठीक है, सो आई थिंक ओवर टू यू नितिन सर। I don't see much of queries coming in. Fine. I hope no students have any doubt currently. So Ashish sir, thanks a lot for sharing this wonderful information with the students. In case if the student have any doubt, sir ने अपना phone number दिया हुआ है, तो you people can coordinate with this sir. And feedback link will be forwarded in the WhatsApp group. Fill up the feedback link and then you will be getting an e-certificate. Okay. So shall we close if none of you have any doubt? Okay. एक मिनट सर, please. Yes, sir. Thank you, sir. Very, very thank you. Thank you. Thank you. Thank you so much नितिन सर for giving us the Thank you, sir. opportunity. Students को भी थोड़ा help हुआ होगा is what I expect. Correct. Please do good in your career बच्चा लोग. All the best for your exams that you will be attempting maybe the month of June or so. Okay. Thank you, Thank you sir. so much. Thank you. Thank you. Thank you so much, sir.